عالمین کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر نہیں بھیجا، رحمت بنا کر عالمین کو بھیجا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیگر چیزیں بھی سب کام کی ہے، تعلیم ایسے سنتا رہنے کے لیے، لیکن اگر زیادہ ہو جائے پھر انسان کے لیے رحمت نہیں ہے، رحمت ہو جاتا ہے۔ کھانا بھی کھا رہا ہے، ایک بات ہے مچھلی سے زیادہ کھا کے بدل یہ سوال رسول اسلام موجود ہے، رسول اسلام کے پہلو میں ہے، رسول اسلام کے ساتھ ملتے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے فائدہ حاصل نہ کرتے باقی رہنے کے اور سے ایسے ہے آپ دیکھیں کہ انبیاء معصومت میں جو گزر گئے انبیاء نے ذکر کیا، نام لیا، جب تذکرہ کیا کہ آخری پیغمبر آئے تھے، نام سنا، ان کے دل میں محبت پیدا یعنی دیکھا نہیں تھا لیکن بہت سے ایسے تھے کہ دیکھنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں خود جو ہے وہ چیزیں فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسرے فائدہ اٹھا لیتے جیسے پتھر میں کہیں گڈھا ہوا بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے معلوم جاتا ہے لیکن وہ جو ہے پتھر استفادہ نہیں کرتا، پتھر جذب نہیں کرتا۔ پرندے آتے ہیں دیگر پرندے آتے ہیں وہ جو ہے استفادہ کرتے ہیں، جاتے ہیں پی لیتے ہیں، لیکن خود جو ہے پتھر جو ہے وہ جذب نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر زمین میں ہو تو پانی کو جذب کرتے ہیں، یا آپ دیکھیں کہ بہترین کوئی شخص جو ہے ہوٹل کھولا ہے، ایک جو آ رہے ہیں کھانے جتنا کس میں سوچ لیجیے گا جتنا یاد ہے ہمارے خیال سے ہر ایک کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس میں ہے، اگر غلط کا بات کریے گا بولنے کے غلط اتنی ہے اسے ہے نام اس طرح گھر کو معلوم نہیں، ہر قسم کے جو ہے غذا مل رہا ہے، غذا مل رہا ہے، دکان کھولا بہترین کئی کروڑ لگا کر آ رہے ہیں لوگ، اتنا خرچ کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں بہترین سے بہترین کھانا کھا رہے ہیں، لیکن خود جو ہوٹل کا مالک ہے گھر پہ جا کے جو ہے دال روٹی کھا آواز نہیں آ رہی، کہاں سے کمی ہے؟ اچھا آگے یہ صحیح ہے، ابھی تھا سوال پڑھی ہے تو دوسرے استفادہ کر رہے ہیں، بہترین سے بہترین گوشت لے کر جا رہے ہیں، لیکن خود جو ہے بیماری کے معلوم و سبزی کو کھا رہا ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ رحمت میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں استفادہ کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے تھے کہ رسول اسلام کے ساتھ تھے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور جو رسول اسلام کے ساتھ تھے کوئی سلمان بن گیا، کوئی افضل بن گیا۔ بہت سے آپ دیکھیں کہ جب رسول اسلام کے اور کو دیکھا تو رسول اسلام کو نہیں مانتے تھے، کافر تھے، لیکن دیکھنے کے بعد جو ہے فوراً ایمان لے کر آئے، اسلام کو قبول کر لیتے رہتے ہیں۔ یہودی کو پکڑ لیا تھا، لوگ آپ بھی میرے ساتھ غیر اللہ کے رسول آپ جو ہے ہمیں اجازت دیجیے، ایسے کیسے تو گستاخی کر دیا،
आप इजाजत दीजिए, अभी जो है कत्ल कर दे। इन्हें भी मालूम था कि रसूल इस्लाम कहेंगे नहीं कत्ल करो। रसूल इस्लाम भी समझ ही रहे थे कि जहाँ जो है तलवार की जरूरत होती है तो फिर वहाँ पाँव इस्तेमाल करते हैं। आप क्या आखिरकार जो है खुदी का आपने किताब में पढ़ा, आपने तौरेत में पढ़ा, आपने सुना है कि आखिरी पैगंबर आएंगे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आएंगे, उनका इस्लाम जो है ऐसा होगा। वही जो है देख रहे थे, वाकई जो हमने अपनी किताब में पढ़ा वही जो है आपका अल्लाह के किरदार है। लिहाजा फौरन कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो जो काफिर है लेकिन अल्लाह का किरदार को देखिए, अल्लाह के अहमियत है। ये नहीं है कि मसला जो है मालूम नहीं होगा कि बाहर जो है बहुत अपना इखलाक दिखा रहे हैं, अब घर में सद्दाम बने हुए। तो आप ऐसी चीज है मिलता है तारीख में। पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा ने एक मरतबा साथ में कहा, सब साहब मौजूद थे। रसूल इस्लाम ने कहा कि काफिर इस इरादे से चले हैं हमें कत्ल करने के इरादे से चले। रसूल इस्लाम ने कहा कि कोई है जाए, जाने के बाद उनका मुकाबला करे। जितने थे सब जो है खामोश। रसूल इस्लाम ने कहा कि अली कहाँ है? तो आमिर बिन ये खड़े होने के बाद कहा अल्लाह के रसूल ने जो है बड़ा तकलीफ है सर में, उसका हाथ कर रहे हैं। तो दौड़ते हुए गए और जाने के बाद मौलाए कायनात से कहा, रसूल इस्लाम ने फरमाया है 3 आदमी निकले हैं बंद करने के इरादे से, कोई शख्स है और जाने के बाद जो है नहीं करते। अब जैसे ही मौलाए कायनात ने सुना फौरन जो है मस्जिद में चले आए। जब मस्जिद में आया और आने के बाद कहा अल्लाह के रसूल आप हुक्म कीजिए। कहा कि देखो 3 अफराद जो है काफी हमारे कत्ल के इरादे से आ रहे हैं। तो मौलाए कायनात ने कहा बस घर जाते हैं, तलवार वगैरह ले ले। रसूल इस्लाम ने कहा कि नहीं अली रुकिए। रसूल इस्लाम ने अपना अमामा पहनाया, तलवार दिया, सवारी और कहा कि अब जाइए आप। अब मौलाए कायनात जो है गए इंतकाल लेने, वो जो काफी आ रहे थे। अब मौलाए कायनात गए और आमिर ने कहा ये भी थे, वापस आ गए। अब जो है वक्त लग गया, एक दिन लग गया हो या लम्हा लग गया हो, वक्त लग गया। अभी तक जो है शहजादी लगा ने रसूल इस्लाम से सवाल किया, अभी तक अली आए नहीं। ऐसा मालूम होता है ऐसा हो कि हमारे बच्चे यतीम हो जाए। अब जैसे रसूल इस्लाम सुने हम भी हुए, अब लोगों को भेजा। अब जैसे ही शहजादी ने कहा सुनिए बहुत तकलीफ बात ऐसे पढ़ते चले जा रहे हैं। शहजादी ने जैसे कहा जनाब जिब्रील, और आने के बाद जो है अब पूरा वाकया बयान किया। बताया कि मौला अली गए, एक शख्स मुकाबले पे आ गया, उसी से बता दिया, हम भी नहीं बताएंगे, बता दिया हाँ जिब्रील ने रसूल इस्लाम। अब उधर से मौलाए कायनात आ रहे थे, 2 को असीर किए हुए, आज बता 2 चले आ रहे। एक का जो है सर अपने हाथ में ये हुए, एक को वाकया वो याद है ना, खंडक वाला आ रहे थे तो लोगों ने कहा ऐसे चल रहे हैं दुश्मन मुनाफिक थे ना, इधर कैसे चल रहे हैं। और बता दिया ताकि वो वाकया भी सुना होगा ना, जनाब सामान बैठे ही सब लोग भाग कर रहे थे। देखिए अवधि ने कह दिया है, जब रसूल इस्लाम ने कह दिया जो कह दिया वो हो के रहेगा, यही जो है कामयाब हो जाएगा। यानी देखिए आप लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। हर जगह जो है
काम नहीं होता है। आप जगह जज्बात में आने से काम खराब। आप तो कोई जनाब सलमान बैठे दौड़ भाग कर रहे थे, सोचे कि धूल गर्दा उड़ेगा उससे जन्नत मिलती है, दौड़ भाग से जन्नत मिलती है। बात बढ़ जाएगी। आगे सवाल पढ़िए। मुजाहरा करना चाहिए, जज्बात में नहीं। आप जगह अखलाक भी ना निकला है, आप जगह अखलाक निकलाएगा कमजोर समझ के दस बार सुना के चले जाएंगे, वही याद हो जाएगा। यानी ऐसा हो जाएगा जैसे घरे घर की बहू। ये सलवार जुमला रोक लिए मुझे साहब, आप समझ गए ना, जुमला रोक लिए बड़ा एहतियात किया है। ये सलवार अच्छी पढ़िए आप जब पहुंचे रसूल इस्लाम ने कहा कि अली क्या हुआ ये बताइए। आप बताएंगे या हम खुद ही बता दें? अब जो मुनाफिक थे कहने लगे देखो अभी तक इन्हें खबर नहीं थी, अब ये खुद ही कह रहे हैं कि कहो तो हम बताते हैं। जो मुनाफिक थे वो परेशान हो गए। मुनाफिक जो है सबसे ज्यादा जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा है काफिरों से नहीं पहुंचा है, इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुनाफिकों से पहुंचा है। मुनाफिक दोबारा अब मुनाफिक जो है वो कहने लगे देखो, आपस में कहने लगे ना एक दूसरे से। हम मुनाफिक यही करते हैं ना, एक दूसरे के कान में जो है करते हम आधा करते दूसरे उसका खबर नहीं हो तो समझेगा बड़ा खास है हमारा। अब कुरान ने भी कहा अब मौजूद अल्लाह नहीं पढ़ते थे सूरह बकरा में, सूरह फातिह में जो है रसूल इस्लाम से कभी कभी देर में आने लगता है, लेकिन मौजूद नहीं कंट्रोल करना पड़ता। हर चीज़ पढ़ेंगे तो घंटा लग जाएगा। अगले गुनाह को मालूम हुआ पढ़ेंगे तो 4 आदमी करेंगे, कोई मसला नहीं। 2 रहे 4 रहे वैद का जिक्र होना चाहिए, उसमें से थोड़ी होता है। और ये सवाल तो बात ये है मुख्तसर हम भी बढ़ा दें मुख्तसर ये कहने लगे कि अभी तक नहीं मालूम, अब ये कह रहे भी बता। अब मलाए कायनात में बताए अल्लाह के रसूल हम गए और जैसे ही गए एक सामने आ गया, कहा जिस तरीके से मोहम्मद है उसी तरीके से तुम ने भी कत्ल करने के लिए आए थे, वो नहीं है तुम आ गए हो। तो मौला अली से कहा कि हम जो है कत्ल कर देंगे। अब वो मुकाबले पे आ गया। अब जब मुकाबले पे आ गया हमला कर रहा था, मौला अली ने वार किया, हमला किया, वहाँ वगैरह करता, वो जो है इसी तरीके से वार करता रहा। आखिरकार जो है आखिरकार कत्ल किया। और जो 2 अफराद थे उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि मोहम्मद जो है बहुत अच्छा, लिहाजा हमें यहूदी के सामने ले चलो वहीं कत्ल करते। ये काम होता है कायदा से अच्छा सुने कत्ल कर दीजिए, लेकिन उनके पास हमें लेकर चलिए। हम मौला अली लेकर चलिए, असील कर दिया। अब जब पहुंच गया बता दिया रसूल इस्लाम से ये मुकाबले पे आ गया था, लिहाजा हमने इसे कत्ल कर दिया। अब जब 2 अफराद थे, एक से कहा तुम इरादे से, उसने कहा कि हम कत्ल करेंगे। 12 बात नसीहत की, लेकिन जो है वो माना नहीं, अकड़ा रहा। अब जब अकड़ा रहा अब रसूल इस्लाम ने और कहा इसे कत्ल कर दीजिए, ये भी कत्ल हो। अब बचा एक और बचा ना, 2 लेकर आए, एक बचा पहले हो गया। अब जो है हुक्म दिया, उसने भी कहा, उसने कहा कि यहाँ ये 2 अफराद गए हैं, हमें भी वही पहुंचा दीजिए। ये भी नहीं कहा। अब इधर हुक्म दिया कि जनाबे जिब्रील आए और आने के बाद कहा अल्लाह ने दुरूद और सलाम के बाद परवरदिगार ने ये कहा है कि अल्लाह के रसूल इसे कत्ल न कीजिए। मुझे इस बात में सवाल किया क्यों? ये सब तो मालूम है रसूल क्यों? तो हुक्म हुआ कि इसका जो है बात बहुत अच्छा था और ये बहुत सखावत करता था, मेहमान को खाना खिलाता था, बेहतरीन था। जब ये हुक्म आया तो अब जो है रसूल इस्लाम ने आप अभी जाने दी। अब जब उसने ये देखा कि
रसूल इस्लाम ने ये हुक्म दिया तो फौरन सवाल किया कि आखिर वजह क्या है? आपने हुक्म दिया था लेकिन आपने रोक दिया। तब जो है रसूल इस्लाम ने कहा कि हाँ मसला ये है कि तुम्हारा अखलाक जो है बड़ा अच्छा है, घर में भी बाहर के अखलाक भी अच्छा है, तुम सखावत भी बहुत करते हो, मेहमान नवाजी करते हो। तब इसने कहा कि हाँ ये बात तो है, हम जो है लड़ने वड़ने जंग पे भी जाते हैं, दुश्मन भी कुछ कहता है तो हम बोलते नहीं है, अखलाक से पेश आते हैं और सखावत भी करते हैं। कहा ये बात तो है। कहा ये जो है अमल अल्लाह को इतना पसंद, कहा ये अमल है तुम्हारा कि जिसकी वजह से हुक्म आया। आज जब ऐसी बात है तो फिर जो है हम कलमा पढ़ते पढ़िए के बाद मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है अखलाक के जरिए किरदार के जरिए है, लेकिन जो है अखलाक जो है वो वाला न हो, धोखा देने वाला। बात करते हैं ना, नहीं कहते मतलब बात करते हैं बड़ा अच्छा आदमी का अखलाक बड़ा अच्छा था लेकिन चोट कर गया वो है, कहते नहीं कि धोखा दे गया, अखलाक तो बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे से मिलता था, ये करता था, मसला जो है हमने ये चीज दे दी और लेके भाग गया, लाभ ठीक था। तो ये वाला है ना लाभ नहीं, ये लाभ जो है ये अलग है। अच्छा याद आ गया, पढ़े थे कभी हमसे, पढ़ दे उसको, छोड़ देते रसूल इस्लाम के पास आया, कहा अखलाक गिनाइए, अरे छोड़ देते जाने, ये आ गया किसी को सुन लीजिए, ये अखलाक है ये वाला ना बात है कि जब इतना मजबूत होगा। ईरान में बादशाह पहले दौर में घुसे हैं, उसका करते और बादशाहों का मसला है, तो बादशाह भी सीधा साधा था, तो लोगों ने उससे कहा कि देखिए आपके जमाने में, आपके दौर में कुछ अपराध ऐसे हैं, हो गए पढ़िए सब बात पढ़िए, तो बस एक मुकम्मल है पढ़ो साथ पढ़िए। तो ये हुआ ऐसे अपराध है, आपके जमाने में बादशाह है ऐसे अपराध, इसीलिए पढ़ रहे सो जाते, इसीलिए छोड़ दिए, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए, सब बात करिए। इलाके में ऐसे हैं कि वो कान काट लेते हैं लेकिन दर्द नहीं होता। बादशाह से कहा ये कौन से है कि गोश्त का काम है, कान काटने खबर न हो, हाँ ऐसे हैं। बादशाह ठीक है बुलाओ, एक को ढूंढ के लाए, एक बुरा था तुम्हारे अंदर किस तरीके से कान काटते हो, गोश्त का कान है और दर्द नहीं होता। कहा पहले काटते थे कान, दर्द नहीं होता, लेकिन अब जो है हम छोड़ दिए। कहा किसी का कान काट के दिखाओ तो मालूम तो कैसे गोश्त है, कान काट ले तो खबर नहीं होता। कहा नहीं अब माफ करिएगा, आप जाने दीजिए, अब पहले करते थे अब छोड़ दिया, अब हम बूढ़े हो गए अब चल नहीं पाते। कहा बाहर दिखाओ तो करके, कहा नहीं जो सामान वगैरह था सब जो है बेच बाज दिया, है नहीं। कहा तो खरीदो, अरे पैसा नहीं हमारे पास, बड़ा महंगा है। कहा कोई बात नहीं, पैसा हमसे ले लो, पैसा ले लो खरीद के लाओ। कहा 2-4 हफ्ता लगेगा। कहा ठीक है जाओ। गया 2-4 हफ्ता क्या, 1-1.5 महीना हो गया है। अब जो बादशाह सीधा साधा भोला बादशाह था, उसने कहा मालूम करो कहाँ चला गया, कहो कि कान काट के दिखाए, किसी का कान काट के देखे कैसे काटता है, दर्द नहीं होता। इसी तरह पकड़ के लेकर आए, कहा कि तुम आए नहीं, पैसा दिए थे। कहा सरकार हम बहुत शर्मिंदा है इसीलिए तो आज निकाह। क्या हुआ? आज ऐसे ही दरबार के बाहर निकले, किसी ने जेब काट लिया, जेब काट लिया, अब शर्मिंदा से पैसा है नहीं, मांगा है इसलिए हम नहीं आए। कहा कोई बात नहीं, हुक्म दिया दे दो पैसा, दे दो। फिर जो है पैसा लेकर गया, कहा कि 1 हफ्ते में आए, फिर गया, फिर 1 महीने तक आया ही नहीं। फिर हुक्म दिया पकड़ के लेकर आओ, क्यों नहीं आया, फिर पकड़ के लेकर आए। कहा कि हमने दोबारा भी दिया और कहा कि कान काट के दिखाओ, कैसे काटते हो, कान की दर्द नहीं होता, तुम आए नहीं। उसने कहा हुजूर 2 बार कान आपका काट दिया, 2 बार कान काटा, आपको दर्द हुआ। ये जो है
सवाल मोहम्मद आप जो है आप ऐसा होना चाहिए जवान एक अगवानिगार जो है हमें एक अखबार आदमी वक्त जो है की विरासत है। हाँ मोहतर आप देखिए कैसे गुजरा कि जब ये आका मदीने में पहुँच गया शहजादी में सुनचंद नबी तबीयत तलील हुई यहाँ तक कि बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी मरतबा इशारा किया सैयद सज्जाद को सैयद सज्जाद करीब आए शहजादी उन्हें कुछ कहना चाह रही आवाज़ नहीं आई बस आखिरी फिक्र आवाज़ नहीं आ रही सैयद सज्जाद ने अपने कान को करीब किया और करीब करने के बाद सवाल किया फूफी अम्मा क्या कहना चाहती कहा बस ये कहना चाहती हूँ कि सैयद सज्जाद मेरे भाई हुसैन ये कहे मेरा भाई हुसैन आए और आने के बाद आखिरी सलाम है और कहे कि उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम खुदा हाफिज सैयद सज्जाद ने कहा कि फूफी अम्मा आपको तो मालूम है कि बाबा करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे السلام علیکم السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم علی بن ابی طالب السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم خصوصا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم